Hello students, in this video I have Kumar going to deliver lecture 2 of the chapter Interference of Light in Physical Optics of class BSc Part 2 Physics, Honors General and Subsidiary courses. The topic is determination of the wavelength of monochromatic light with the help of a Fresnel biprism. It is a very important topic which is usually asked in BSc Part 2 examinations of different universities. First of all, what is ए बाइप्रिज्म? सबसे पहले बाइप्रिज्म क्या है यह जानना जरूरी है. फ्रेनेल डिवाइस्ड ए डिवाइस और फ्रेनेल कंस्ट्रक्टेड ए डिवाइस which is called biprism, which is used to obtain two coherent sources S1 and S2. Suppose S1 and S2 of S1 and S2 sources of light produced from a single light source S. Due to refraction from the upper half and lower half of the biprism, and with the help of a biprism we can obtain interference fringe or interference pattern or sustained interference on the focal plane of the eyepiece, which behaves as a screen SY. In the overlapping region, due to superposition of light waves in the overlapping region BC, coming from the cones of light B S1E and A S2C, and due to superposition of light waves, that is interference of light, the phenomenon of interference of light occurs, and in this region BC of the focal plane of the eyepiece we observe alternate bright and dark fringes, which is called interference pattern, which is formed in the BC region, which is the overlapping region. This figure represents formation of interference pattern or formation of interference fringes by using a Fresnel biprism. So now write down Fresnel's biprism. फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक डिवाइस है जिसके हेल्प से हम टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट S1 एंड S2 एक सिंगल लाइट सोर्स से S से ऑब्टेन कर सकते हैं, और फिर S1 S2 से लाइट वेव्स और लाइट बीम जो वास्तव में S से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ऐसा ऑब्जर्वर या फील करेगा कि लाइट वेव्स S1 से और फिर S2 से लाइट वेव्स आ रही हैं और उनके सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस का फेनोमेनन अकर होता है और उससे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होता है BC रीजन में. तो ये बाइप्रिज्म, फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म, जिसको कंस्ट्रक्ट किया था सबसे पहले यूज किया था किसने? फ्रेनेल ने. सो इट इज कॉल्ड फ्रेनेल बाइप्रिज्म. इट इज ए डिवाइस, राइट डाउन, इट इज ए डिवाइस टू ऑब्टेन two coherent sources of light
CaS1NH2 from a single light sources, from a single light source S to produce sustained interference or interference pattern or interference fringes. What is sustained interference? अगर इंटरफेरेंस पैटर्न के इच पॉइंट पर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज का पोजीशन फिक्स्ड होता है, इट मीन्स देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज एट ए पार्टिकुलर पॉइंट in the interference pattern, that interference pattern is said to be sustained interference. अगर किसी इंटरफेरेंस पैटर्न के स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेज ऑब्टेन होता है, और यहाँ स्क्रीन की जगह, स्क्रीन कहाँ है, यहाँ पर स्क्रीन का क्या होगा, यहाँ स्क्रीन आईपीस का फोकल प्लेन होगा, जो कि ऑप्टिकल बेंच, हॉरिजॉन्टल ऑप्टिकल बेंच के एक वर्टिकल अपराइट पर, एक वर्टिकल स्टैंड पर आईपीस सबसे एक्सट्रीम टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर फिक्स होता है, एडजस्टेड होता है उस वर्टिकल स्टैंड में टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, जिसमें हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, देख पाते हैं. So it is a device to obtain two coherent sources of light, say S1H2 from a single light sources to produce sustained interference or interference fringes or interference pattern. Sustained interference or interference fringes or interference fringes on the focal plane of the eyepiece. Interference fringes. Now, formation of fringes by prism is shown in this figure. A vertical narrow slit which is adjusted on the left extreme of the optical bench, and it is illuminated by a monochromatic light source. इस वर्टिकल स्लिट को, जो कि ऑप्टिकल बेंच, क्योंकि फ्रेनेल बाइप्रिज्म का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उसमें ऑप्टिकल बेंच होता है और हॉरिजॉन्टल ऑप्टिकल बेंच, जिसमें 4 अपराइट्स या 4 वर्टिकल स्टैंड फिक्स होते हैं, और सबसे एक्सट्रीम, सबसे लेफ्ट वाला जो वर्टिकल अपराइट होता है, वर्टिकल स्टैंड होता है, उसमें एक स्लिट लगा होता है, वर्टिकल स्लिट, लीनियर स्लिट लगा होता है, और जिसके बगल में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, सपोज किया जाए सोडियम वेपर लैंप को रख दिया जाता है. जब लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इससे रिलेटेड, उस मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव का वेवलेंथ को मेजर करने के लिए, तो उस सोडियम वेपर लैंप मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के रूप में यूज किया जाता है, और उसके हेल्प से स्लिट को इल्यूमिनेट किया जाता है. और स्लिट के जस्ट बगल में एक और दूसरा वर्टिकल स्टैंड होता है जिस पर कि बाइप्रिज्म एडजस्टेड होता है. तो बाइप्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग जो फेस है वह स्लिट के पैरेलल रखा जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में देखा जा सकता है. रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ द बाइप्रिज्म इज हेल्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द वर्टिकल स्लिट. अब जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को स्लिट से इल्यूमिनेट किया जाता है, तो इससे प्रोड्यूस होने वाला लाइट बीम्स बाइप्रिज्म के अपर हाफ एंड लोअर हाफ या लोअर पार्ट पर जाकर इंसिडेंट होता है. अपर हाफ एंड लोअर हाफ पर लाइट वेव्स, एस से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेव्स, एस से निकल करके लाइट वेव इंसिडेंट होती हैं, और ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 2 वर्चुअल सोर्सेस S1NH2, जो कि एस का माने सिंगल लाइट सोर्स एस का 2 वर्चुअल इमेज है S1NH2, जिसको कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कहा जाता है, वो प्रोड्यूस होती हैं. क्योंकि बाइप्रिज्म के अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट वेव्स S1 तथा S2 से आता हुआ मालूम होता है, और S1NH2 दोनों कोहेरेंट सोर्सेस के समान वर्क करता है, जैसा वर्क करता है, और उससे लाइट वेव्स के सुपरपोजिशन से
ओवरलैपिंग रीजन में, जिसे शेडेड पोर्शन द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, बीसी रीजन में मतलब आईपीस के फोकल प्लेन के बीसी रीजन में इंटरफेरेंस पैटर्न अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज ऑब्टेन होता है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं आईपीस के फोकल प्लेन पर। तो ये इसका ये फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज बाय ए बाइप्रिज्म। सो फॉर्मेशन ऑफ, राइट डाउन राइट नाउ, formation of fringes by a biprism या by the biprism, formation of fringes, a vertical slit, जिसे वर्टिकल स्टैंड पर ऑप्टिकल बेंच के वर्टिकल स्ट्रीम लेफ्ट में जो वर्टिकल स्टैंड होता है उस पर एडजस्ट किया जाता है। ए वर्टिकल स्लिट एस kept on the vertical stand, kept on द एक्सट्रीम, मतलब लेफ्ट सबसे जो बाएं साइड में होता है, लेफ्ट एक्सट्रीम में जो वर्टिकल स्टैंड होता है। 4 ऑप्टिकल बेंच पर 4 वर्टिकल स्टैंड्स एडजस्टेड होते हैं, जिसमें सबसे जो साइड वाला, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में जो वर्टिकल स्टैंड होता है उसमें वर्टिकल स्लिट एडजस्टेड होता है, और उसके जस्ट बगल वाला जो सेकेंड वर्टिकल स्टैंड होता है उसमें एक बाइप्रिज्म लगा होता है, बाइप्रिज्म, जिसके अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट से रिफ्लेक्शन के कारण 2 कोहेरेंट सोर्सेस S1 S2 प्रोड्यूस होते हैं, और इनसे ट्रेवल करने वाले लाइट बीम्स या लाइट वेव्स के सुपरपोजिशन के कारण ओवरलैपिंग रीजन बीसी में इंटरफेरेंस पैटर्न या इंटरफेरेंस फ्रिंजेज अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज ऑब्टेन होता है, जिसे हम आईपीस के फोकल प्लेन पर जो कि स्किन जैसा बिहेव करता है हम ऑब्जर्व कर पाते हैं आईपीस के थ्रू। और थर्ड एक और वर्टिकल स्टैंड होता है बाइप्रिज्म के जस्ट बगल में, बाइप्रिज्म के जस्ट राइट में, तो उस पर कॉन्वेक्स लेंस को रखा जाता है, और केवल उस सिचुएशन में रखा जाता है जब दोनों कोहेरेंट सोर्सेस S1 S2 के बीच का डिस्टेंस 2D मालूम करना होता है। उस सिचुएशन में उसको दो पोजीशन में उस वर्टिकल स्टैंड को पर एक कॉन्वेक्स लेंस को, उसी कॉन्वेक्स लेंस को 2 पोजीशन में रख करके S1 और S2 जब पहले पोजीशन में जो थर्ड अपराइट है या थर्ड वर्टिकल स्टैंड है उस पर कॉन्वेक्स लेंस को रखा जाएगा, तो S1 और S2 का रियल इमेज फॉर्म होगा, और जिसे हम आईपीस से में देख पाएंगे। तो उन दोनों के बीच का S1 S2 का जो रियल इमेज होगा उसके बीच का डिस्टेंस फर्स्ट सिचुएशन में उसको सपोज करेंगे D1 है, और फिर अब दूसरे पोजीशन पर उस लेंस को ले जाएंगे जो थर्ड वर्टिकल स्टैंड पर होता है। तो अब उस पोजीशन में भी फिर S1 S2 का रियल इमेज फॉर्म होगा, और फिर उन दोनों रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस उस लेंस के सेकेंड पोजीशन पर सपोज किया जाए D2 है, उसको फिर हम मेजर करेंगे, और दोनों का प्रोडक्ट D1 D2 का प्रोडक्ट लेकर और फिर उसका स्क्वायर रूट लेने पर दोनों कोहेरेंट सोर्सेस S1 S2 के बीच का डिस्टेंस हम ऑब्टेन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। The vertical slit is kept on the extreme left vertical stand on the optical bench. Vertical stand is illuminated by a monochromatic light source, say a sodium lamp. Monochromatic light source says a sodium lamp. Now biprism is also held on the second upright or second vertical stand parallel to the vertical slit, so that light beam or light waves coming from S1 fall upon the upper and lower halves or parts of the biprism, and due to refraction of light, these light beams seems to be coming from two virtual sources S1 and S2. Light emerging out of
the slit fall upon light beams or light waves fall upon the upper and lower halves or upper and lower parts of the biprism seems to be coming out from S1 and S2 due to refraction of light. Seems to be coming out from two virtual sources S1 and S2, which are known as coherent sources. Two coherent sources of light due to refraction through the biprism. Sources of light are superposed, that is two cones of light BS1B, BS1E and AS2B ये कोन जैसा शेप हो गया, शंकु जैसा शेप हो गया लाइट का. आर कमिंग टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट S1 and S2, S1 and S2 to form two cones of light BS1E and AS2B, that is two cones मतलब शंकु का फॉर्मेशन हो गया, शंकु के शेप का हो गया. BS1E cones of light, BS1E एंड फिर दूसरा AS2C, two cones of light are seems to be diverging from S1 and S2, and they superposed in the overlapping region, which is denoted by the shaded part. Seems to be diverging from coherent sources S1 and S2 are superposed in the overlapping region, which is denoted by the shaded part in the diagram figure 1. In the overlapping region, जिसको कि shaded part के द्वारा, और ये रीजन है BC जो कि स्क्रीन मतलब आईपीस के फोकल प्लेन पर होगा. ओवरलैपिंग रीजन BC, we obtained interference fringes. We obtain interference pattern or alternate bright and dark fringes. So that pattern is observed by the eyepiece. आईपीस के फोकल प्लेन पर फॉर्म होगा XY जो कि स्क्रीन के जैसा बिहेव करेगा. We obtain interference pattern or interference fringes in this region BC. So this is the formation of fringes with the help of a biprism. Now theory of the biprism. Mathematical theory, we have to derive the formula to obtain the wavelength of monochromatic light using a biprism या with the help of a biprism. इसके लिए एक अदर डायग्राम को स्केच करना होगा. सपोज किया जाए कि नाउ इस theory of formation of fringes, that is we have to obtain the formula for wavelength of light. सपोज किया जाए कि S1 कोहेरेंट सोर्सेस S1
एंड H2 जो कि एक ही सोर्स लाइट सोर्सेस से ऑब्टेन हुआ है, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस, S के ऊपर S1 और S के नीचे H2, और दोनों S1 S2 के बीच का डिस्टेंस 2D है, मतलब S1 और S के बीच का डिस्टेंस D, सोर्स से एक वर्चुअल सोर्स, ओरिजिनल सोर्स S से वर्चुअल से ऊपर वाला वर्चुअल सोर्स S1 का डिस्टेंस D, और फिर S से S2 का डिस्टेंस भी D, दैट इज सपोज किया जाए डिस्टेंस 2D है। और यहाँ पर स्क्रीन है, मतलब आई पीस का फोकल प्लेन, जहाँ पर कि इंटरफेरेंस जिस पर जहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होता है उसे हम ऑब्जर्व करते हैं। अब S1 से दोनों, सपोज D बी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स ऑफ द टू कोहेरेंट सोर्सेस एंड द स्क्रीन, दैट इज फोकल प्लेन ऑफ द आई पीस। ये डिस्टेंस D है, तो यहाँ पर एक S1 से S1 M1 हम परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देते हैं स्क्रीन पर, और फिर S2 से भी परपेंडिकुलर S2 M2 ड्रॉन करते हैं। अब सपोज किया जाए इससे जिसका डिस्टेंस S1 से भी M1D और ये भी डिस्टेंस D है, मतलब लेट D बी द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन फ्रॉम द फोकल प्लेन ऑफ द टू कोहेरेंट सोर्सेस। Let O be the midpoint of this screen, XY. O be the midpoint. Suppose P be a point where interference fringe is to be obtained. That is, constructive or destructive interference can be observed at point P, which depends on the path difference between light waves, light coming from two coherent sources S1P और यहाँ से S2P। S2 से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेव P पॉइंट पर जाकर के, इस स्क्रीन के P पॉइंट पर जाकर के सुपरपोज करेगा। तो P पॉइंट, P का पोजीशन मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का होगा। अगर P का पोजीशन मैक्सिमा का होगा तो वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहाँ दो लाइट वेव्स सेम फेज में इंटरफेयर करेगा, मतलब दो लाइट वेव्स का क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रॉ से ट्रॉ इंटरफेरेंस होगा, सुपरपोजिशन होगा। या जब S1 से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेव का क्रेस्ट और सपोज किया जाए S2 से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेव का ट्रॉ अगर इंटरफेयर करता है P पॉइंट पर अपोजिट फेज में, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रॉ से, तो इन दैट सिचुएशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स एंड वी ऑब्टेन डार्क फ्रिंज एट पॉइंट P। तो अब P पर पोजीशन होगा मैक्सिमा मिनिमा का, वो डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पर, दैट इज लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 एंड S2। और S जो है पोजीशन है, S पोजीशन है लाइट स्लिट का, और उसी के सीध में, उसी के जस्ट अपवर्ड एंड जस्ट डाउनवर्ड दो कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, वर्चुअल सोर्सेस S1 एंड S2। तो ये डायग्राम है फिगर 2, इसके थ्योरी के लिए, फार्मूला ऑब्टेन करने के लिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्योंकि S को हमने इल्यूमिनेट किया है स्लिट को मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसके बगल में मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को रखा जाता है, सपोज किया जाए सोडियम लैंप का। अब सपोज किया जाए O से P का जो डिस्टेंस है वह x है, x भी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन O। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल S1 M1P वी हैव S1P स्क्वायर, हमें दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस मालूम करना है, S2P माइनस S1P। तो S1P पहले मालूम कर लें, S1P हो जाएगा S1P इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, S1P स्क्वायर इक्वल टू S1 M1 स्क्वायर प्लस M1P स्क्वायर। तो वी हैव S1P इक्वल टू S1 से लाइट कोहेरेंट सोर्सेस, फर्स्ट कोहेरेंट सोर्स S1 से P स्क्रीन XY जो कि आई पीस का फोकल प्लेन है, तो उसके पॉइंट P का डिस्टेंस S1P इक्वल टू S1P स्क्वायर इक्वल टू S1 M1 स्क्वायर प्लस M1P स्क्वायर, दैट इज S1 M1 स्क्वायर इज D स्क्वायर प्लस M1P, क्योंकि हमने सपोज किया है सेंटर से, स्क्रीन के सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस x, तो ये डिस्टेंस भी यहाँ, ये डिस्टेंस भी S से S1 का डिस्टेंस D है, तो यहाँ भी डिस्टेंस D होगा, O से M1 का डिस्टेंस D होगा, फिर O से M2 का डिस्टेंस भी D ही होगा। तो ये हो गया D स्क्वायर प्लस x, M1P इक्वल टू M1P स्क्वायर, S1P स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर S1 M1 स्क्वायर प्लस M1P स्क्वायर, दैट इज D स्क्वायर प्लस x माइनस D, क्योंकि यहाँ सेंटर से P का डिस्टेंस, स्क्रीन के सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस M1P x माइनस D हो जाएगा, x माइनस
डी स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसका पावर हाफ हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। S1P स्क्वायर है तो इधर पावर हाफ, रूट अंडर दैट इज पावर हाफ। अब यहाँ से अगर हम इसमें डी स्क्वायर अगर कॉमन बाहर करते हैं तो डी स्क्वायर फिर पावर हाफ है, तो डी स्क्वायर का मतलब पावर हाफ मीन्स स्क्वायर रूट, डी स्क्वायर का पावर हाफ डी हो जाएगा, केवल डी बाहर करना होगा, 1 + x - डी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस टर्म में डी स्क्वायर नहीं है तो डी स्क्वायर से नीचे डिवाइड करना होगा, फिर ब्रैकेट को अगर हम हटाएंगे तो फिर इतना टर्म ये डी स्क्वायर, फिर इसको लाएंगे अंदर तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ डी स्क्वायर + x - डी स्क्वायर होगा, और 1/2 पावर है, 1/2 पावर को यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 + x to the power n = 1 + nx। Therefore we get S2P S1P इक्वल टू, यहाँ हम ऑब्टेन कर सकते हैं इसको x - डी स्क्वायर, ये हो गया S1P हमने ऑब्टेन कर लिया। अब इसी ढंग से सिमिलरली S2P भी ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब दूसरे कोहेरेंट सोर्स, सेकेंड कोहेरेंट सोर्स S2 से स्क्रीन XY जो कि आईपीस का फोकल प्लेन है कि पॉइंट P का डिस्टेंस S2P, तब पार्ट डिफरेंस हमको मालूम होगा। दिस इज इक्वेशन 1 एंड सिमिलरली S2P इक्वल टू D, इसी ढंग से डायरेक्ट D यहाँ पर S2P मालूम किया जा सकता है, S2P स्क्वायर इक्वल टू S2M2 स्क्वायर प्लस M2P स्क्वायर, एंड S2M2 इज अगेन कैपिटल D, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द फोकल प्लेन ऑफ द टू कोहेरेंट सोर्सेस, D स्क्वायर प्लस D + x हो जाएगा। यहाँ से M2 से P का डिस्टेंस, अब सेंटर से P का डिस्टेंस x है तो ये D प्लस ये डिस्टेंस भी D हो जाएगा, यहाँ तक M2 से O का डिस्टेंस भी D हो जाएगा, तो D + x स्क्वायर, M2P इक्वल टू D + x स्क्वायर, देयरफॉर D 1 + 1/2। अब यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हुए डायरेक्ट इसको सिमिलरली जैसे कि इक्वेशन 1 को लिखा है S1P का डिस्टेंस, उसी ढंग से अब यहाँ डिस्टेंस x - d की जगह कितना हो जाएगा, x + d। M2 से P का डिस्टेंस, स्क्रीन के पॉइंट M2 से P पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा x + d, तो 1/2 x + d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमको पार्ट डिफरेंस चाहिए, तब हम कंडीशन अप्लाई कर सकेंगे कि P पॉइंट का पोजीशन, P पॉइंट पर दोनों लाइट वेव S1, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस S1 S2 से प्रोड्यूस होकर के ट्रेवल करने वाला लाइट रे जब P पॉइंट पर रीच करेगा, पहुंचेगा, तो सेम फेज में होगा या अपोजिट फेज में होगा, तो उसके लिए कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, तब जाके P का पोजीशन मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो S2P मालूम हो गया, D अंडर ब्रैकेट 1 + हाफ x + d स्क्वायर / d स्क्वायर यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, और सिमिलरली एज वी हैव डन इन केस ऑफ S1P। देयरफॉर पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स, पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स बीम्स और लाइट वेव्स, पार्ट डिफरेंस जिसको हम डेल्टा सिंबल से डिनोट करते हैं, डेल्टा इक्वल टू, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, S2 चूँकि थोड़ा सा नीचे है, दूसरा कोहेरेंट सोर्स S के थोड़ा नीचे है और S1 थोड़ा ऊपर है, तो S2 से P का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा। S2P इज मोर देन दैट ऑफ S1P, डिस्टेंस S1P, सो पार्ट डिफरेंस इज S2P - S1P। अब यहाँ S2P का वैल्यू है और S1P का वैल्यू है, तो हम रखेंगे D, तो टोटल में दोनों में कॉमन हो जाएगा, 1 + हाफ x + d स्क्वायर / d स्क्वायर, ये 1, तो D तो कॉमन ही हो जाएगा, -1 + 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1/2 से बचेगा, इस टर्म दोनों टर्म में उसको भी बाहर कर लेंगे, तो x + d, फिर D स्क्वायर भी बाहर कर लेंगे, तो इस प्रकार D से D स्क्वायर बाहर करेंगे तो नीचे में D बच जाएगा और 2 भी बचेगा, 1/2 D नीचे बच जाएगा, और ये x - d स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, और x + d का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर + 2xd + d स्क्वायर, so x square will cancel out, -d square and +d square will cancel out, we will left with 2xd + 2xd that is 4xd, और 4xd नीचे में चूँकि 2 टर्म है तो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2xd अपॉन d हमें ये बचेगा, S2P - S1P, इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें बचेगा 4xd/2d, तो d से मैं ये 2 से 4 डिनोमिनेटर में 2 से न्यूमरेटर का 4 कैंसिल होकर 2 बचेगा, 2xd अपॉन कैपिटल D, दिस इज द पार्ट डिफरेंस वी कैन ऑब्टेन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग equation 1 from equation 2. So this is the part difference, and now we have to apply the condition of constructive interference at P and destructive interference, and then we will obtain the fringe width for 2 consecutive bright fringes and dark fringes. अब P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन ऑब्टेन करके 2 लगातार सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के लिए के बीच का डिस्टेंस जो होगा वह फ्रिंज विड्थ होगा, और जिसको कि बीटा और एक्स बार से डिनोट करते हैं, वह मालूम कर लेंगे, और जब मालूम हो जाएगा तो एक्स बार या बीटा मालूम हो जाएगा जो कि λd/2d होगा, तो उस फॉर्मूला से हम λ ऑब्टेन कर सकते हैं। दोनों केस में
पी पोजीशन जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होगा मैंने ब्राइट फ्रिंज के लिए भी, और पी जब पोजीशन होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का उस सिचुएशन में डार्क फ्रिंज होगा, उसके लिए भी सेम फार्मूला फ्रिंज विड्थ के लिए होगा। 2 कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के लिए भी वही फार्मूला होगा। Now to get bright fringe at point P, that is for constructive interference, for the constructive interference at point P, that is to get bright fringe at point P. P point पर उजाला होगा, ब्राइटनेस होगा, उसके लिए कंडीशन है for constructive interference at point P of the screen. Point P, that is to get bright fringe, we have path difference delta जो कि हमें ऑब्टेन हुआ है 2x d/d, पाथ डिफरेंस डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 2n इंटू लेमडा बाई 2, मतलब दैट मीन्स इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, 2n इंटू लेमडा बाई 2 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। 2n से मल्टीप्लाई किए लेमडा बाई 2 में, 2n से किसी भी नंबर में किसी भी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन मल्टीपल होगा, तो इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 और नहीं तो n लेमडा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, तो ये इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा हो गया 2n इंटू लेमडा बाई 2। अगर पी पॉइंट पर, स्क्रीन के पी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब दोनों लाइट कोहेरेंट सोर्सेस S1 S2 से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेव्स अगर सेम फेज में इंटरफेयर करेगा पी पॉइंट पर, तो वहाँ ये कंडीशन होगा, तभी जा करके पी पॉइंट जो पोजीशन होगा ब्राइटनेस का, वहाँ पर उजाला होगा, ब्राइटनेस होगा, वहाँ ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व होगा। तो डेल्टा इक्वल टू 2n इंटू लेमडा बाई 2, और डेल्टा जो पाथ डिफरेंस है वो 2x d/d है, तो डेल्टा की जगह यहाँ पुट कर दें 2x d अपॉन कैपिटल D इक्वल टू 2n इंटू लेमडा बाई 2, और इससे x जो है, x का मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ दिस ब्राइट, ये भी अब क्योंकि ब्राइटनेस का पोजीशन होगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पोजीशन हो गया, ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन हो गया, तो सेंटर पर भी क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि S1 तथा S2 दोनों वर्चुअल सोर्सेस से स्क्रीन के पॉइंट O का डिस्टेंस सेम है, इसलिए पॉइंट O पर S1 और S2 से प्रोड्यूस होने वाले लाइट बीम्स और लाइट वेव्स सेम फेज में इंटरफेयर करेगा, इसलिए जो सेंटर का पोजीशन होगा, ये स्क्रीन का सेंटर का पोजीशन होगा, वह हमेशा या वहाँ या आईपीस का फोकल प्लेन का सेंटर का जो पोजीशन होगा वह हमेशा वहाँ पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगा, क्योंकि S1 और S2 से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेव वहाँ सेम फेज में ऊपर जाकर के सुपरपोज करेगा। Light waves coming from both coherent sources S1 and S2 will superposed at point O of the screen, that is midpoint of the screen in the same phase. So midpoint O of the screen will always be the position of maxima, that is bright fringe, that is the position of bright fringe. तो अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से P पर जो ब्राइट फ्रिंज होगा उसका डिस्टेंस x, उसको सपोज कर लिया जाए xn, nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस x मीन्स xn इक्वल टू हो जाएगा, xn इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला 2 से 2 कैंसिल करा दें तो n लेमडा d अपॉन 1 2 बचेगा, ये 2d, ये 2d, यहाँ 2 ये बच रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल कराएं तो नीचे वाला 2 बच रहा है, ये n लेमडा d बाई 2d हो गया, ये nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद जो अगला ब्राइट फ्रिंज होगा, इसके बाद फिर डार्क फ्रिंज होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न में अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज होता है। तो अब नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस होगा अगला xn+1, तो उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, तो डिस्टेंस ऑफ द n+1th ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज का तो डिस्टेंस हमको मालूम हो गया फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर इज n लेमडा d बाई 2d। इस कंडीशन से नाउ xn+1 दैट इज डिस्टेंस ऑफ द नेक्स्ट n+1th ब्राइट फ्रिंज, इस nth ब्राइट फ्रिंज के जस्ट बाद वाला जो ब्राइट फ्रिंज होगा सक्सेसिव, उसके लिए यहाँ n की जगह n+1 इस इक्वेशन में पुट करना होगा, n+1 लेमडा d अपॉन 2d, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और दोनों का डिफरेंस अगर लिया जाए तो यही फ्रिंज विड्थ हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज और 2 सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेज, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेज एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। सो therefore फ्रिंज विड्थ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज xn+1 माइनस x, xn+1 माइनस x, ये फ्रिंज विड्थ हो जाएगा, जिसे बीटा और x बार से डिनोट किया जा सकता है। ये हो गया 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस xn+1 डिवाइड बाई xn, दैट इज n+1 लेमडा d बाई 2d, n लेमडा d बाई 2d, इसमें लेमडा d बाई 2d क्या कॉमन हो जाएगा, तो n+1 माइनस n से n कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमें मिलेगा लेमडा d बाई 2d। और ये फ्रिंज विड्थ हो गया फॉर
this is the fringe width for fringe width for the bright fringes. This is the fringe width for the bright fringes, which is the distance between two successive ब्राइट फ्रिंजेज xn + 1 - xn. अब इससे जो फार्मूला होगा लेमडा का वैल्यू इससे हमको मालूम हो जाएगा. लेमडा इल्यूमिनेशन ऑब्टेन करना है. देयरफॉर वी हैव फार्मूला फॉर टू डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट 2d बीटा अपॉन लेमडा इक्वल टू 2d बीटा अपॉन कैपिटल डी. अब इसमें अगर 2d मेजर कर लें, बीटा मेजर कर लें, कैपिटल डी मेजर कर लिया जाए और सभी का मेजर्ड वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट हम डिटरमाइन कर सकते हैं आफ्टर कैलकुलेशन. और सिमिलरली ब्राइट फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए भी यही फार्मूला आएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन लेमडा इक्वल टू 2n + 1 λ/2 या 2n - 1 λ/2 दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2. ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2. ऑड मल्टीपल कब होगा? जब 2n में एक 1 ऐड कर दें या 1 माइनस कर दें. तो उसके लिए भी सेम फार्मूला सिमिलरली भी फॉर ये वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए फार्मूला होगा. वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए फार्मूला हमने ऑब्टेन किया. तो ये ब्राइट फ्रिंज के लिए किया, ब्राइट फ्रिंज के हेल्प से किया. लेकिन डार्क फ्रिंज के लिए भी सेम रिजल्ट आएगा. केवल यहाँ पर कंडीशन हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू. फॉर डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा? पी पॉइंट पर डार्क फ्रिंज होगा, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. तो फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस at point P of the screen, we have a path difference delta equals to 2n into delta which is 2x d by d, 2x d small d by capital D आया था, ऑब्टेन किए थे हम लोग 2n + 1 या 2n - 1 λ/2. और यहाँ पर भी फिर x = xn हम मालूम कर लेंगे. यहाँ पर x = 2n into λ/2 d अपॉन लेमडा डी अपॉन 2 नीचे में चला आएगा तो 2 × 2 दैट इज 4 हो जाएगा. दैट इज x = xn. मतलब सेंटर से, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ओ से, एक चीज़ तो क्लियर है कि सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज होगा वो हमें, सेंट्रल जो फ्रिंज होगा वो पर मैंने ये स्क्रीन के सेंटर पर सेंट्रल जो फ्रिंज होगा वो हमेशा ब्राइट होगा, क्योंकि हमने बताया कि S1 और S2 से ओ का डिस्टेंस सेम है. तो S1 S2 से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेव्स वहाँ सेम फेज में इंटरफेयर करेगा. तो वो भी द सेंटर ऑफ द स्क्रीन विल ऑलवेज बी द पोजिशन ऑफ मैक्सिमा. तो xn क्या हो जाएगा डार्क फ्रिंज के लिए? मतलब डिस्टेंस ऑफ द nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर इज x = xn which is we have 2n + 1 λ/d अपॉन 2 × 2 को नीचे ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 4d 2n + 1 λ/4d. ये डिस्टेंस ऑफ द nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम दैट पॉइंट P. इफ ब्राइट फ्रिंज इज फ्रॉम दैट पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर हो. ये मालूम हो गया डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज. और ये इक्वेशन नंबर ये 7 दे सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ के लिए तो फार्मूला हमने ऑब्टेन कर लिया है, डार्क फ्रिंज के लिए ऑब्टेन कर रहे हैं. अब अगला जो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज होगा तो उसके लिए इस इक्वेशन में, इस फार्मूला में n की जगह n + 1 सब्स्टिट्यूट करना होगा. तो 2n की जगह n + 1 + 1 λ/d अपॉन 4d दैट इज 2n + 2 + 1 दैट इज 2n + 2 + 1 दैट इज 2n + 3 λ/d 2n + 3 λ/4d. This is equation number 8. This is the distance of successive next dark fringe from the center, that is xn is the distance of nth dark fringe from the central bright fringe, and xn + 1 is the next distance of next dark fringe from the central bright fringe. तो ये 2n + 3 λ/d - 4d दोनों का डिफरेंस लेंगे तो फ्रिंज विड्थ आ जाएगा. दोनों का डिफरेंस लेने पर फ्रिंज विड्थ डार्क फ्रिंज के लिए उतना ही आएगा जितना कि यहाँ आया है ब्राइट फ्रिंज के लिए आया था. देयरफॉर बीटा फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंज बीटा = xn + 1 - xn. और यहाँ भी 2n + 3 λ/4d और यहाँ पर भी 2n + 1 λ/4d. λ/4d कॉमन है दोनों में, तो 2n + 3 - 2n + 1, 2n + 2n - 2n कैंसिल हो गया, 3 - 1 दैट इज 2. तो 2 λ/4d. तो फिर लेमडा से 2 से न्यूमरेटर का 2 से 4 का नीचे वाला 4 कैंसिल हो जाएगा. तो वी विल गेट फिर हमें बचेगा दैट इज वी विल गेट
लेमडा डी बाई 2d, दैट इज दोनों का वैल्यू पुट करने पर हमें केवल मालूम यहाँ पर सर्वाइव करेगा लेमडा डी बाई 2d बीटा। देयरफॉर ये दिस इज द फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंज, दिस इज द फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंजेज। Distance between two consecutive dark fringes is called fringe width for dark fringes, fringe width for dark fringes। और इससे भी फिर वही फार्मूला लेमडा इज इक्वल टू 2d बीटा अपॉन d, जैसा कि हमने इक्वेशन 6 में ऑब्टेन किया है। तो इक्वेशन 10 भी आ जाएगा यहाँ पर। देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू 2d बीटा अपॉन कैपिटल D, दिस इज इक्वेशन नंबर 10 फॉर wavelength of light we obtained from the formula for fringe width for dark fringes। सेम फार्मूला है, तो इसलिए किसी फार्मूला में अब हम इसमें क्या करेंगे, 2d का मेजर करेंगे, कैपिटल D का मेजर करेंगे, फ्रिंज विड्थ तीनों का मेजर करके जो मेजर्ड वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और आफ्टर कैलकुलेशन वी कैन ऑब्टेन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट लैम्डा। वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड द फार्मूला to obtain wavelength of light, monochromatic light used lambda is equal to 2d beta upon capital D in the theory. Now we have to measure all these three terms, 2d, beta and capital D. First of all, measurement of the capital D, that is distance between the planes of two coherent sources and the screen, that is distance between the slits, distance between the slit and the eyepiece. So now the position of verniers in the base of two vertical stands, that is stands of in the stands of slit and eyepiece, are taken on the main scale of the optical bench, and difference in two readings gives the distance between the slit, that is distance between the planes of the plane of two coherent sources, and the screen, that is position of the eyepiece. Here the readings of the bottom, that is vernier provided in the bottom of the reading of the bottom verniers provided in the bottom verniers provided in the bottom of the vertical stands, two vertical stands, bottom of the two vertical stands, bottom of the two vertical stands, that is stands of slit and eyepiece, that is stands of slits and slit and eyepiece are noted on their position are noted on the with the help of main scale on the main scale of the optical bench, and difference in two readings of two stands, that is vernier provided in the base of stands of slit and eyepiece, and this difference are noted on the main scale of the optical bench. The difference between two readings, these two readings gives the distance d, that is distance between the slit and the eyepiece, that is distance between the planes of two coherent sources and the screen, gives the distance capital D.
that is distance between the slit and the eyepiece. Now we have to measure second term, beta, fringe width. Measurement of fringe width beta. Fringe width beta. To measure fringe width beta, that is distance between two consecutive bright fringes and two consecutive dark fringes, crosswire of the eyepiece is set on a bright fringe. Suppose a bright fringe or crosswire may be set, may be coincide to the dark fringe, any dark fringe also. तो क्रॉस वायर को कॉन्साइड कराएंगे किसी ब्राइट फ्रिंज से उसके, और फिर उसी क्रॉस वायर को कॉन्साइड कराएंगे अब दूसरे किसी फ्रिंज से, उसके सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज से, और दोनों का पोजीशन, दोनों सिचुएशन में दोनों का पोजीशन हम नोट कर लेंगे. माइक्रोमीटर स्केल आर प्रोवाइडेड in the eyepiece, and difference in two readings gives the fringe width beta. Okay, the readings of micrometer scale provided in the eyepiece when for the crosswire, for its crosswire, that is crosswire of the eyepiece, its crosswire coincides when the crosswire coincides to two successive bright, आइदर ब्राइट फ्रिंज पर दो सक्सेसिव, दोनों ब्राइट फ्रिंज होगा सक्सेसिव, या दोनों डार्क फ्रिंज हो सकता है, उससे क्रॉस वायर आईपीस के क्रॉस वायर को कॉन्साइड करा देंगे 1 बाई 1 करके. और दोनों सिचुएशन में क्रॉस ये जो आईपीस से प्रोवाइडेड है, आईपीस में जो प्रोवाइडेड माइक्रोमीटर स्केल है उसका रीडिंग नोट कर लेंगे. और दोनों रीडिंग्स का जो डिफरेंस होगा वही फ्रिंज विड्थ होगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज और टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ. किसी इंटरफेरेंस पैटर्न में दो लगातार ब्राइट चमकीले फ्रिंज धारियों के बीच की दूरी या दो लगातार काले धारियों के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ कहा जाता है, फ्रिंज चौड़ाई कहा जाता है. फॉर इट्स crosswire, that is crosswire of the eyepiece coincide to two successive bright or dark fringes respectively. Difference between these two readings gives the fringe width, that is distance between two successive bright or dark fringes. Difference between these two readings gives fringe width beta, the value of fringe width beta. तो एक बार और इस प्रोसेस को मैं रिपीट करता हूँ. बाइप्रिज्म अरेंजमेंट में, बाइप्रिज्म का जो सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसमें जो आईपीस होता है सबसे एक्सट्रीम ऑब्जर्वर के साइड में ऑप्टिकल बेंच पर ही होता है, वो भी वर्टिकल स्टैंड पर ही होता है एडजस्ट, क्योंकि बाइप्रिज्म में 4 स्टैंड्स होते हैं. जैसा कि हमने कहा कि सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में स्टैंड पर स्लिट होता है, उसके जस्ट बगल में जो स्लिट होती है स्टैंड होता है उस पर बाइप्रिज्म होता है. थर्ड स्टैंड जो होता है उस पर हमेशा कॉन्वेक्स लेंस को नहीं रखा जाता है. जब दोनों वर्चुअल सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस मेजर करना हो 2D, तभी उसमें कॉन्वेक्स लेंस को एडजस्ट किया जाता है. और सबसे एक्सट्रीम जो राइट है ऑब्जर्वर साइड में जो ऑप्टिकल बेंच में जो वर्टिकल स्टैंड लगा होता है उसमें आईपीस एडजस्ट होता है. तो आईपीस के क्रॉस वायर को अब इंटरफेरेंस पैटर्न तो चूँकि हमने ऑब्टेन कर लिया है,
फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेज इन द बाइप्रिंज। तो बाइप्रिंज को हमने एडजस्ट किया है, सेट किया है टू गेट फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेज, इंटरफेरेंस पैटर्न, टू गेट इंटरफेरेंस पैटर्न, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज। तब आईपीस के क्रॉस वायर को किसी भी ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज से कोइंसाइड कराएंगे और उस आईपीस से जो अटैच्ड माइक्रोमीटर स्केल है उसका रीडिंग हम नोट कर लेंगे और फिर अब उसी क्रॉस वायर को अब कोइंसाइड कराया जाएगा सक्सेसिव, उसके बाद वाला, मतलब अगर ब्राइट फ्रिंज से अगर हम कोइंसाइड कराए हैं तो इन लास्ट वी हैव टू मेजर 2D, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस or two coherent sources S1 and S2. And for this, that is to measure 2D, a convex lens is kept on the third vertical stand, adjusted in the optical bench between biprism and the eyepiece in two positions. Say first position of the convex lens on the vertical stand is L1, and light rays coming from two coherent sources S1 and S2 after refraction from lens after refraction through biprism and after passing through the lens L1. Now fringe it disappear. अब फ्रिंज गायब हो जाएगा। जब लेंस को लगा देंगे तो जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेज है वह डिसअपियर हो गया, गायब हो जाएगा और S1 और S2 का दो रियल इमेज यहाँ दिखाई देगा। S1 का इमेज यहाँ दिखाई देगा, सपोज करें S1 डैश, और S2 का इमेज यहाँ दिखाई देगा S2 डैश। फ्रिंज गायब हो जाएगा। जैसे ही थर्ड वर्टिकल स्टैंड पर, जो कि बाइप्रिज्म तथा आईपीस के बीच सिचुएटेड होता है ऑप्टिकल बेंच पर, ऑप्टिकल बेंच में लगा होता है बाइप्रिज्म के स्टैंड और आईपीस के स्टैंड के बीच में। तो जैसे ही उस पर किसी कॉन्वेक्स लेंस को रखा जाएगा, एक कॉन्वेक्स लेंस को किसी एक पोजीशन में, तो फ्रिंज गायब हो जाएगा। और S1 S2 का जो वर्चुअल S1 S2 दोनों कोहेरेंट सोर्सेस वर्चुअल सोर्सेस है, तो इसका रियल इमेज दिखाई देगा, रियल इमेज इसका दिखाई देगा S1 का S1 डैश यहाँ और S2 का इस पोजीशन में। और इन दोनों के बीच का इस लेंस के इस फर्स्ट पोजीशन में दोनों S1 S2 के का जो रियल इमेज फॉर्म हो रहा है दोनों कोहेरेंट सोर्सेस का, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से लाइट बीम के लाइट के रिफ्रैक्शन के बाद, तो उन दोनों के बीच का, दोनों रियल इमेज का बीच का डिस्टेंस फर्स्ट पोजीशन में D1 है। और अब उस लेंस को अब दूसरे पोजीशन में ले जाया जाता है, मतलब उस वर्टिकल स्टैंड को अब शिफ्ट किया जाता है ऑप्टिकल बेंच पर, दूसरा पोजीशन L2 है। तो वहाँ पर फिर से एक बार S1 और S2 का फिर से फ्रिंज गायब हो जाएगा, फ्रिंज डिसअपियर हो जाएगा उस सिचुएशन में, और S1 तथा S2 का इमेज दिखलाई देगा आईपीस के फोकल प्लेन पर। और S1 का इमेज यहाँ S1 डबल डैश सपोज किया जाए, यहाँ दिखलाई देगा, और S2 का इमेज यहाँ इस पोजीशन में, अपवर्ड पोजीशन में दिखलाई देगा, सपोज करते हैं S2 डबल डैश। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये S1 दोनों कोहेरेंट सोर्सेस, बोथ कोहेरेंट सोर्सेस S1 S2 का जो रियल इमेज फॉर्म हो रहा है आईपीस के फोकल प्लेन पर, तो उसके बीच का डिस्टेंस, उन दोनों का रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस सपोज किया जाए D2 है, दूसरे जब लेंस को दूसरे पोजीशन में शिफ्ट किया गया L2 में। तो मैग्नीफिकेशन का प्रॉपर्टी से अब मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चूँकि दोनों पोजीशन एक दूसरे के कंजुगेट हैं, तो इसलिए दोनों का जो मैग्नीफिकेशन का जो प्रोडक्ट होगा, मैग्नीफिकेशन इन पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस L1 सपोज किया जाए M1 है, और दूसरे पोजीशन L2 में मैग्नीफिकेशन, लेंस के दूसरे पोजीशन में मैग्नीफिकेशन M2 है, और दोनों कंजुगेट पोजीशंस हैं। तो इसलिए देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीफिकेशन M1 एंड M2 इक्वल टू 1। तो यहाँ फर्स्ट केस में फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस L1 फॉर पोजीशन L1, फॉर पोजीशन L1 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट पोजीशन है ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस वी हैव मैग्नीफिकेशन M1 इक्वल्स टू, यहाँ S1 S2 का दोनों कोहेरेंट सोर्सेस का इस पोजीशन में, जब लेंस को पहले पोजीशन L1 पर रखा गया है, तो S1 S2 का रियल इमेज फॉर्म हुआ है, S1 का S1 डैश, S2 का S2 डैश, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू रियल इमेज of two coherent sources S1 and S2 in position L1 of the lens is D1. Distance between two real images
इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लेंस L1 इज D1। ये दोनों का इमेज है, S1 का S1 डैश, S2 का यहाँ S2 डैश, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। दैट इज D1 इज द डिस्टेंस बिटवीन द रियल इमेज, टू रियल इमेज फॉर्म्ड ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 एंड S2 इन फर्स्ट पोजीशन L1 ऑफ द लेंस। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा कितना, इमेज जो है रियल इमेज फॉर्म हुआ है उसका, तो D1 हाइट D1, और यहाँ शुरू में दोनों कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, D2 है। M1 इक्वल टू D1/2D। एंड फॉर व्हेन द लेंस इज शिफ्टेड टू अनदर पोजीशन, जिसको कि डॉटेड से दिखाए हैं, यहाँ पर लेंस का न्यू पोजीशन सेकंड पोजीशन है, तो यहाँ पर लेंस को डॉटेड से दिखाए हैं, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन के बाद ये पोजीशन आएगा, तो उस पोजीशन में, तो फॉर पोजीशन सेकंड पोजीशन L2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस वी हैव, अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन, यहाँ पर अब S1 S2 का जो रियल इमेज फॉर्म हुआ है, S1 डैश यहाँ नीचे और S2 का रियल इमेज S2 डैश ऊपर, उसके बीच का डिस्टेंस, दोनों रियल इमेज माने दोनों कोहेरेंट सोर्सेस S1 S2 के बीच का जो रियल इमेज फॉर्म हुआ है लेंस से रिफ्लेक्शन के कारण, तो उस सिचुएशन में दोनों रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, D2 है। लेट D2 बी द पोजीशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू रियल इमेज ऑफ द two coherent sources S1 and S2 in second position L2 of the lens when the lens is shifted to second position L2, another position L2, तो of the lens। यहाँ पर फिर मैग्निफिकेशन M2 सेकेंड पोजीशन के लिए लेंस के, M2 इजकल टू, अब ये दोनों इस सिचुएशन में दोनों S1 S2 का रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, सेकेंड पोजीशन में D2 है, जो दिखाया गया है D2, और फर्स्ट पोजीशन में था दोनों रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस लेंस के फर्स्ट पोजीशन में D1 था, तो M2 इजकल टू D2/2D। Now both positions of lens convex lens are conjugate, therefore product of both magnifications in both positions of the lens should be 1 equal to 1, therefore M1 is D1/2D, M2 equals to D2/2D, product is 1, therefore we have D1 into D2 is equal to 2D into 2D, that is 4D square into 1, that is 4D square, and we can write 4D square as 2D whole square, therefore 2D equals to root under D1 and D2, 2D is equal to root under D1 and D2। तो ये हमको मालूम हो गया। अगर D1 D2 को हम मेजर कर लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का स्टैंड से अटैच्ड जो माइक्रोमीटर स्केल होता है, माइक्रोमीटर स्केल, उससे दोनों पोजीशन में D1 D2 को हम मेजर कर लेंगे, और मेजर करके इसमें 2D इक्वल टू रूट अंडर D1 एंड D2 में उसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उस वैल्यूज को, दोनों के वैल्यूज को, D1 एंड D2 के वैल्यूज को, तो हमें 2D मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस मालूम हो जाएगा। सो आफ्टर ऑब्टेनिंग बोथ द वैल्यूज ऑफ D1 and D2 with the help of micrometer scale provided to the lens stand, vertical stand. So reading of micrometer screws in both positions of the lens are noted, and after putting those values, that is the values of D1 and D2 calculated in this formula, 2D is equal to root under D1 and D2, we can obtain the distance between two coherent sources S1 and S2. Therefore, we have obtained all three values, that is the value of 2D, value of fringe width beta earlier, and value of D, that is distance of the eyepiece from the slit. All values are we have measured all three values, 2D, beta and D, and after putting these values in this equation, lambda is equal to 2D beta by D, we have obtained in equation 6 as well as in equation 10, we can obtain the wavelength of monochromatic light used, lambda. We can calculate with the help of this equation, we can obtain the wavelength of light used in this experiment, in बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। और इसी के साथ जिसमें कि BSc पार्ट 2 फिजिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया गया इस वीडियो में, जिसमें कि बाइप्रिज्म के हेल्प से, फ्रेनेल बाइप्रिज्म के हेल्प से मोनोक्रोमेटिक लाइट बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में यूज किए जाने वाले मोनोक्रोमेटिक
लाइट सोर्स के वेवलेंथ का डिटर्मिनेशन किया गया। यह वीडियो समाप्त होता है। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को यूजुअली प्राय पूछा जाता है यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 2, चाहे ऑनर्स क्लास हो या सब्सिडियरी का कोर्स हो या जनरल कोर्स हो, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।